करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या इसके लिए एक बड़ी उपलब्धि के समान है। इस उपलब्धि के साथ साथ इसका विकास करना भी एक बड़ी चुनौती के समान है। भारत ने सबसे ज्यादा महत्व युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर दिया है, क्योंकि भारत में 50% से ज्यादा लोग 25 साल से कम और 65% से ज्यादा लोग 35 साल के कम की उम्र के। तो युवाओं का विकास यानी देश का विकास। युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारत ने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति आयुर्वेदिक और योगा दोनों का सहारा लिया है। भारत ने WHO के साथ मिलकर गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है, जिसमें भारत सरकार ने $250 मिलियन का निवेश किया है। संस्कृत में कहते हैं कि व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम परम सुखम, यानी कि व्यायाम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए काम करता है, साथ साथ वह हमारी आयुष्य बढ़ाने के लिए भी अच्छा काम करता है। तो भारत सरकार ने अपने स्वदेशी खेल के माध्यम से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करने में प्रेरित किया है। चेस, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, वह भी भारत ही मूल है उसका, जो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है। व्यायाम के साथ साथ योगा का भी महत्व भारत में बहुत है। विश्व योग दिन की भेंट देके भारत ने 180 से ज्यादा देशों को एकजुट किया। इस बार की योगा डे की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, वह ही भारत का ध्येय रहा है। इसके आगे हम बात करें तो जैसे कि ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर और साउथ साइड कन्याकुमारी, ये सबको मिला के एक महाद्वीप बनता है। इन लोगों की जो हेल्थ है उसका ख्याल भारत ने कई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करके किया है, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो या कोविड का टीकाकरण। भारत का योगदान सब में रहा है। अब इतने सारे युवा धन की सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग एडिक्शन। तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि ड्रग्स आर नॉट गुड। भारत ने इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 से लागू कर दिया था। इन सभी माध्यम से भारत यही चाहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके, जिसका लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। धन्यवाद। All the judges present over here, I would like to pay my warm homage to all the jury members. Representing Italian Prime Minister, I would like to say we come from the country of Italy, a land that goes back to antiquity. Famous artists and inventors from our heritage, our presence has been marked on world stage. A leader in industries and agriculture, tourism and product doing fine. We come to this summit when the world situation is quite tense. Not to discuss how shall we cope, but emphasizing the importance of hope. So, Italy, a democratic republic whose globalization policy is based on constructivism. In Italy, the red color means charity, white means faith, and green means hope. The annually rotating G20 presidency, when came under Italy, it focused on three interconnected themes, that is, people, planet, and prosperity. Moving ahead, the digital healthcare sector, which accelerated after COVID-19, our country Italy have introduced electronic health record called Fascicolo Sanitario Elettronico, digital health portal, Prenota Online, also digital prescription system. Even in response to COVID-19, our country have introduced digital vaccination certificate called as Green Pass. Universal health coverage has been provided through Italy's National Health Service, that is Servizio Sanitario Nazionale. Also, we Italians are fond of a Latin proverb, that is mens sano in corpore sano, which means a healthy mind in healthy body, which can be attained through traditional medicine and yoga. In recent years, Italy has been a home to new renaissances and rebirth of the human spirit. Also, the yoga retreats are most popular among the tourists in Italy. Moving ahead, the health financing of young citizens is a crucial step, as health financing is a core of health system, for which potential steps such as increasing public involvement in healthcare, improving health financials must be implemented. Further, the United Nations of Drug and Crime joined hands with Italy's anti-drug policies entitled Prevention Strategies and Policymakers, which approaches to illicit drugs
on-demand reduction and treatment and rehabilitation for those suffering from drug addiction. Also, drug prevention is an ongoing effort. Further, our country Italy is a home to diverse range of sport which represent the cultural heritage which contribute to the rich tapestry of the Italy sporting heritage. Lastly, I would like to say I hope all the nations work together to make a world a better place to live in. As individual, we are a drop, but together we are an ocean. Thank you. वही बात को मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर का विजन, उनकी एक सोच, नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, कोई भी वर्ल्ड का जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है वो चाहता है कि मेरा देश, मेरे देश के लोग ऐसे आगे बढ़े ताकि पूरी दुनिया की नजर उस पर हो। लेकिन जो प्रोग्रेसिव होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट होता है, उसकी सोच के साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। ये दो चीज अलग अलग होती है। कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास सोच होती है, होनी है, तभी जाके तो वो पोजीशन पे बैठता है। लेकिन उसके साथ डायरेक्शन देना, जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे रिलेटिव्स में कोई हमें कहता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको ये बोल दिया, लेकिन कैसे करना वो शायद वो नहीं पता पाता। लेकिन हम लकी है कि हमारे पास ऐसा बंदा है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कि जो रास्ता दिखाता है लेकिन चलने का अंदाज भी दिखाता है, वो खुद करके दिखाता है। तो जब ऐसे देश में जब हम युवा नागरिक होते हैं ना, तो मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा जिम्मेदारी हम सबकी हो जाती है। हम सबकी यानी ज्यादा आप लोगों की, कि उन्होंने विजन दिखा दिया कि हिंदुस्तान की नजर पूरे विश्व के फलक पर छा जाने की है। उसी वक्त से पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान के ऊपर है कि ये कैसे छा जाएंगे। और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आप जैसे युवा लोगों की, कि जो लोग कुछ करें, कुछ करके दिखाए, कुछ प्रूव करे, ताकि जो ऐसा लीडर हमें मिला है उस लीडर का विजन हम पूरा कर पाए। और ऐसे ही प्रयास में इस यूनिवर्सिटी में जो आज प्रोग्राम किया गया, मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम
अद्भुत और अविस्मरणीय है मेरे लिए। मैं कंपेयर करना चाहूंगा, आज से 1 साल पहले यही सीजन था, मॉनसून सीजन में मैं सिम्बोसिस पुणे, बहुत प्रेस्टिजियस कैंपस है मैनेजमेंट का भी स्कूल, वहां पे जब हम बैठे थे तभी मैं बात कर रहा था, एज अ ज्यूरी में गया, सेम यही थी, मतलब मिलता जुलता थीम था। थीम ये था कि जो भी अलग अलग हिंदुस्तान के जाने माने लोग हैं, पॉलिटिशियन या तो जो जितने भी लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे लोगों का कंपटीशन था। यानी वहां पे कैरेक्टर निभाए गए थे। कोई अरविंद केजरीवाल बना था, कोई अमित शाह बना था, कोई बाबा रामदेव बना था, ऐसे लोग थे। और वहां पे मोइत्रा भी बने थे। तो ये करके ऐसे लोग वहां पे परफॉर्म किया था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जो टॉप मोस्ट 20 स्कूल में मैंने परफॉर्मेंस देखा, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मुझे आ गया।